वेल फर्स्टली थैंक यू। हाँ, सच बात तो है कि यार जब मैं पहले इंडस्ट्री में कदम रखा था तो इट वाज क्वाइट अ रोलर कोस्टर राइड फॉर 2-3 साल जो भी थे, एंड देन लकली OTTs स्टार्टेड गैदरिंग मोमेंटम, और बिकॉज ऑफ इनसाइड एज मुझे थोड़ा काम मिला, राइट। बट पहले मैं क्या करता था, आई थिंक गलती थी कि मैं परफॉर्म करते समय भी आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द रिजल्ट कि यार लोग क्या कहेंगे, क्रिटिक्स क्या कहेंगे, बॉक्स ऑफिस पे चलेगी नहीं चलेगी, इसके बाद काम मिलेगा। सो आई वॉज जस्ट स्ट्रेसिंग माई सेल्फ आउट अबाउट दोज थिंग्स, एंड आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज कि जब अगर आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे और उस पर ध्यान दोगे, देन यू आर फोकसिंग ओनली ऑन योर प्रोसेस एंड नॉट द रिजल्ट। सो you'll have also more fun, and you're not too concerned about that, because honestly इतने सारे permutations और combinations आ जाते हैं, जब चाहे आप एक फिल्म में काम करो या एक शो पे काम करो, so I try and enjoy myself a lot more now, चाहे मैं ऐसा रोल प्ले कर रहा हूँ या it could be something light hearted, boy next door, whatever it is, तो I think when you have more fun on screen and you enjoy the playing that character more, the audience also enjoy. I honestly, for me, very important is the script and the director. Rest of the thing is not. I'm not saying it's not important, but for me, what is more important and for me to take a decision becomes more easy and convenient is the script. अगर आपकी script ही अच्छी नहीं है तो फिर वो मतलब नहीं बनता है. And director, because only the one person who can tell you what exactly is the story and execution and everything. उसके बाद एक्टर्स इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. अगर बहुत अच्छे मिल गए जैसे तनुज जी जैसे में जाते हैं तो बहुत अच्छा है. यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ही इज लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर. तो आपका काम और इजी हो जाता है. एंड या एक्चुअली I will not say more about why I have chosen this. Yes, of course, आपने बहुत सारे अनुमान ऑलरेडी इतने सारे लगा चुके हैं लोग. इट इज़ अ मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर. एट द एंड हस्बैंड एक्सेप्ट भी करते हैं. बट मोर इम्पॉर्टेंट, हाउ डिड ऑल दीज थिंग्स हैपन. एंड अबाउट पलक, शी इज़ एब्सोल्युटली fearless. She's independent. She's ambitious. And if I see in 90s, that was my childhood. My mother, मेरी mom तो teacher थी, उसके बावजूद उनको इतनी freedom नहीं होती थी. And if I see the Palak at that time, then I think I should say that कि वो perfect ideal बन सकती थी अगर उन्हें मौका मिलता तो. But destiny has some other plans, so she left. जैसे कि मैंने पहले कहा, I mean, I wouldn't say the story affected me honestly, because तो ये प्रोजेक्ट साइन करने से पहले मैं honestly इस कांड के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, because 1995 I was just a little kid back then. But then because of the internet, you can do a lot of research and study what exactly went down. So of course it is very upsetting as a story, but जब मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ और चुनता हूँ, तो आई डोंट लुक एट हिम एज ब्लैक वाइट ग्रे. आई डोंट जज द कैरेक्टर, बिकॉज फिर आप सर्टन इनहिबिशंस के साथ वो कैरेक्टर प्ले करोगे. तो फॉर मी दिस गाय इज द हीरो ऑफ हिज ओन स्टोरी. फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग, ही हैज़ हिज मोटिवेशंस, ही हैज़ हिज रीजनिंग. सही नहीं है, बट आई हैव टू थिंक ऑफ इट एज दैट पर्सन. आई हैव टू ऑनर what that character is trying to speak, because if I start getting Tanuj into it and my own rationale into it, then it will be kind of na idhar na udhar, so that's the thing. So it was not upsetting while performing. Yeah, of course, sometimes when you read these things, you're like, kaise log hai, aise bhi hota hai, what kind of world are we living in. It's scary, and I think it has gotten progressively worse. That was 95. You're talking about 2021, I think because of the internet, social media and everything. So अगर आज ऐसा कुछ होता तो it would have got even a lot more traction, right? But yeah, I tend to blank out when I'm performing. It's give every shot, every take like it is your last one, and then pack up and go home and chill out. So don't think too much. Honestly, I was not aware of Tandoor Kand. जब नेवी मैम से बात भी हुई थी, so she did not mention anything about the script or the story that she's working on, but she told me that I am looking for something very realistic and original.
and let's see ये trip कैसा जाएगा. That was the only sentence that she said, and I was anyway very big huge fan of her. मुझे because working in television I've seen her work pattern and the style, and उनका काम ही इतना बोलता है, तो मैंने बोला हो सकता है. But when she gave me the brief, I actually started reading all the articles. तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि आप मर्डर और रेप और चोरी चकारी आए दिन सुनते हो, लेकिन यू नो यू आर गेटिंग किल्ड बाय योर ओन लवर whom you love the most, और वो आपको जाके तंदूर में जला देता है, just very disturbing actually. और प्यार के लिए तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, दुनिया भी छोड़ जाते हैं, तो बट दिस वॉज वेरी अनरियल फॉर मी, एंड स्टिल आई कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि हस्बैंड ने जेन्युइनली अगर ये शुरू भी हो, ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है कि बीवी को तंदूर में डाल के जला दिया, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग था. एंड मैं उस सीन में भी नहीं थी, तो मुझे नहीं पता इन्होंने शूट भी कैसे किया, बिकॉज एज एन एक्टर व्हेन यू आर नॉट दैट पर्सन बट यू आर प्लेइंग दैट, यू नीड टू हैव दैट सर्टन काइंड ऑफ मेंटेलिटी एंड दैट मेंटल स्टेट हैज़ टू बी करेक्ट, एंड ही इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. तो मैंने वो कुछ क्लिप्स देखे थे, ब्यूटिफुली शॉट, एंड ही परफॉर्म सो मैं बता नहीं सकती. आई थिंक फॉर दैट यू नीड टू सी इट प्रॉपरली. आप वे बताइए, अब देख कर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये देख कर. ये जो भी किरदार हम निभाते हैं वो एक्चुअली हम नहीं होते हैं, उसके लिए एक बहुत सारी हार्ड वर्क और मींस मे बी अपना खुद का एजुकेशन भी लगता है, उसमें हमें रिसर्च करना पड़ता है. मुझे नहीं पता था दैट आई विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मुझे पता भी नहीं था. जब मुझे ब्रीफिंग मिली, समझाया गया और बताया गया, और फिर 1996 में जो ये पूरा कांड हुआ था उस बारे में भी बताया गया. प्लस व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग आर्टिकल्स एंड द वीडियोज़ एंड ऑल, दे एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट थियोरी अबाउट द वाइफ एंड अबाउट द बेस्ट फ्रेंड एंड अबाउट द हस्बैंड. बट इन दिस आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि 3 अलग किरदार है और तीनों अपनी जगह शायद सही भी है. कोई दूसरा गलत, किसी को दूसरा गलत. मे बी शायद आपको मैं गलत लग के तनुज जी अच्छे लगे, मे बी सॉरी साहिल अच्छा लगे, साहिल नहीं, मे बी शायद आपको अयाज सही लगता हो. विल यू प्लीज स्टॉप इट सर, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव भी दिखाए हैं, और मुझे लगा कि जब आप एक किरदार निभा रहे होते हो तो आपका फ़र्ज़ और भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यू वांट योर प्रोजेक्ट टू शाइन. एंड आप का जब ये पहला प्रोजेक्ट हो तो मुझे नर्वसनेस बहुत थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ काम करने वाली हूँ. ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्क्रिप्ट इज़ सो पावरफुल कि शायद हम लोग मैं अगर ये प्रोजेक्ट कर भी लूँ तो ये तो डेफिनेटली चलने वाला है, बट देन एक्टर एंड द डायरेक्टर, बट इवेंचुअली तंदूर जिस तरह से बनाया है, जो ये 5 एपिसोड की सीरीज़ है, दैट इज़ फैबुलस. सवाल क्या है प्लीज? आपको पता था कि आप इस तंदूर में रश्मि जी होने वाली? हाँ, इसलिए तो मैंने साइन करी है. मुझे तो मुझे नहीं पता था. आई मेट हिम इन वर्कशॉप. हाँ, नहीं, मुझे पता था एक्चुअली. इस प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी टाइम से कोट करा था कि यार ये मेरे पास आ जाए, बट फिर लॉकडाउन 2020 की वजह से डिलेज हुए थे, एंड लकली सब चल गया. स्केड्यूलिंग वेड्यूलिंग जो भी मोडालिटीज थे, वी वर एबल टू वर्क इट आउट. तो जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू बी ऑपोजिट रश्मि, तो अच्छा लगा, बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद हर, एंड आई फेल्ट जब मैंने ये कहानी पढ़ा तो आई फेल्ट कि इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्टर, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स है जो या तो एक्टिंग में अच्छे हैं या तो खूबसूरत है, बट यू नीड टू हैव द किलर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. बिकॉज ये जो किरदार निभा रही है पलक, शी इज़ अ वेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर. इनकी अदाएँ हैं, लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं, सो लकली इन रियल लाइफ ऑल्सो रश्मि हैज़ दोज क्वालिटीज विच आई फील कि आप चाहे जितनी भी अच्छी एक्टिंग करते हो, यू कैन नॉट फेक दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो आई फेल्ट कि लाइक शी विल बी अ ग्रेट कोस्टा, एंड वेल शी प्रूव मी करेक्ट. सो जब लाइव कमेंट्स ऐसे मिलते हैं अदाएं, तो आप बताइए क्या फील करती हैं रश्मि? डेफिनेटली मैं तो इन्हें अपना प्रॉब्लम सॉल्वर बोलती हूँ, क्योंकि इन्हें मैं पहले मैं कभी इन्हें मिली नहीं थी. ऑफ कोर्स आई हैव सीन हिज वर्क, इनकी फिल्में, इनके गाने सुनती थी डेफिनेटली, और मैं अपने ही अलग अलग मोमेंट्स बनाती थी इनके गानों पे, अपनी अलग सिचुएशंस को दिखाती थी, बट शी इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ इनके जो इनकी सीरीज़ आती थी. तो
मैं इनके सामने ऐसे खड़ी हो जाऊंगी एज एन एक्टर, फिर भी एक नर्वसनेस रहती है बिकॉज ही इज़ फैब्युलस, अमेजिंग, ही इज़ एक्चुअली आई कॉल हिम अ रॉक स्टार बिकॉज इन्होंने वेट गेन किया था, प्लस इनके साथ जो इनके स्टाफ है उनका अगर आप उतना ही इन्वॉल्वमेंट देखते हो, तो मैं उनको सेट पे देख के पहले 2 दिन तो मुझे टाइम लगा, बट देन आफ्टर दैट इट वाज मोर इजी फॉर मी टू प्ले पलक बिकॉज आई थिंक मैंने नहीं मिली थी तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, बट ऑन सेट ही इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव.